ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੱਥ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕਨਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ, ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਰੀਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਦ ਵੀ ਇਸਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਰਮ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸੱਤ ਦਾ, ਮਿੱਥ ਦਾ। ਮਿੱਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਗਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮਿੱਥ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵੀ ਚਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿੱਥ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो प्रथम ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो समझिए माया की है। महामाई ताकी है छाया। वैसे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ये कोशिश है, सत नूं समझदिआं मिथ दी समझ पै जाती है। रोशनी दे प्राप्त होंदिआं मनुख नूं फिर अंधेरा बजाण दी लोड़ नहीं पैंदी, अंधेरे नूं घर कड्ढण दी लोड़ नहीं पैंदी। सिर्फ दीपक जलाना है, एक काम करना है, रोशनी नूं लैना है, अंधेरा आपे जाएगा, उन्होंने बजाण दी लोड़ नहीं।
उस लिए मेहनत नहीं करनी पैंदी। मिथ माया सत परमात्मा माया की महामाई ताकी है छाया। वो जो महात्मा है परमात्मा है महान है उसकी छाया है माया। जितना वड्डा वो आप है असीम है उसकी माया भी असीम है। उसके प्रभाव हेठ भी जीव जी रहे हैं पर माया के प्रभाव हेठ भी जीव जी रहे हैं। और अधिक प्रभाव माया का छाया दिखाई देती है छाया महसूस होती है छाया प्रभावित भी करती है पर छाया देखद्या देखद्या विलीन हो जाती है। छाया नूं पकड़ना चाहिए छाया हथ दे च नहीं आती लेकिन है तो सही। इस वास्ते परमात्मा नूं ते कह दिता सत ते माया नूं कह दिता अनरवचनी। एक वचन एक गल एक होंद माया नाल नहीं जोड़ सकते। एक होंद उस एक नाल जोड़ सकते हैं जो परमात्मा है। वो जो परमात्मा है वो जो सत है। ये जो मिथ है ये जो माया है इस बारे शब्द शायद है शायद नहीं है। बस इस ते ही हूं ज्यादा जोर देइए तो गल पकड़ दे आ जाएगी समझ दे आ जाएगी। शायद है शायद नहीं है। प्रभाव पै रहा छाया का धुप का सताया होया मनुख आया छां च बैठ गया कुछ सुख मिल रहा है। छाया दिखाई भी दे रही है छाया प्रभावित भी कर रही है पर देखद्या देखद्या छाया बदल जाती है पकड़ दे च नहीं आती नहीं है पर है नहीं है। सिर्फ ये नहीं कह सकते है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि होना ना होना हो जाता है ना होना होना हो जाता है। अनर्वचनी होने सी होने नहीं है हुणे है सी हुणे नहीं है हुणे नहीं है हुणे हो गई है। कहते ने साडे देश दे एक महान प्रतिभाशाली मनुख वक़्त दा दार्शनिक पुरुष जगत गुरु शंकराचार्य उन्हें ऐलानिया किया जगत नहीं है माया है और माया भी नहीं है वास्ती है। इस विचार नूं इतना जोर नाल प्रचारिया जिहड़े तर्कशील सन वो करीबन करीबन शंकराचार्य दे नाल चल पे उन्हां दी गल समझ च आई। एक दिन अमृत वेले बनारस की गल गंगा चो इशनान करके आ रहे ने रस्ते दे एक खाक रूब एक सफाई करने वाला रस्ता जो साफ कर रहा सी अपनी झाड़ू नाल। तो हुण कुदरती गल है जमीन साफ करनी है तो निगाहां जमीन ते रखनियां पैंदियां। झुकिया होया सी बेचारा उसकी झाड़ू छो गई शंकराचार्य नाल। वो तड़प उठे ऐ शूदर तू मैनू भ्रष्ट कर दिता मैं हुण ते इशनान करके आया तू रस्ते च मिल गया फिर तेरी झाड़ू मैनू छो गई है तो मैनू भ्रष्ट कर देता है। हाथ जोड़ के शूदर कहता है स्वामी जी सारा संसार नहीं है माया है। ये शूदर की छाया है ये माया नहीं है। अगर संसार नहीं है तो फिर शूदर भी नहीं है। संसार नहीं है सिर्फ भासता है तो शूदर भी नहीं है सिर्फ भासता है। आम बंदा होंदा मोटी अकल दा होंदा तो शायद शूदर नाल झगड़दा पर स्वामी जी दे हथ जुड़ गए जगत गुरु शंकराचार्य दे। हाँ ज्ञान मेरे को जरूर सी पर मैं इसनों वरतन दे च नहीं लिया सकिया सी। कहते वो ज्ञान व्यर्थ है जिन्हों असी अमल दे च नहीं लिया सकते।
वो आशा भी फिजूल है, उसका बोझ चुकना भी व्यर्थ है, जिहड़ी कदी जीवन दे पूरी नहीं हो सकती। वो कर्म भी व्यर्थ ने जिसका कुछ भी फल नहीं है, कुछ भी फल नहीं है। जैसे मैं एक मन दुध ललावा तो वो एक मन दुध मैं पत्थर ते पावा, आखा मैं धार्मिक कर्म कर रहा, कुछ भी फल नहीं है। इस दे नाल कोई पत्थर की भी तृप्ति होवे, उसकी भी कोई पूर्ति होवे नहीं होंदी। लेकिन मैं ये जान के करा कि धार्मिक कर्म है तो व्यर्थ कर्म, फिजूल कर्म। हज करन जाते ने मुसलमान हाजी, हज़ारां जानवरां दी कुर्बानी दे देंदे ने, कहंदे ने खुदा कुर्बानी मंगदा है। फिर उस खुदा नूं रहीम ते रहमान आखण दी लोड़ ही नहीं, जो इतनी कुर्बानी मंगदा है। फिर उसनों महान दानी आखण दी भी लोड़ नहीं, जान मंगदा है। व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान। कभी अपनियां इच्छावां नूं पढ़न की कोशिश करना जो मनुख चुकी फिरदा है, इस जिंदगी च नहीं बथेरियां पूरियां होण लगियां। एवें मनुख डौंदा फिरदा है, एवें मनुख चुकी फिरदा है। अज भी थोड़ा पढ़ोगे उन्हां ख्वाहिशां नूं जो असीं चुकी फिरदे हैं, नहीं पूरियां होण लगियां। ते जद पूरियां ही नहीं होणियां तो फिर क्यों चुकी फिरदे हैं? व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान। बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, व्यवहार दे च नहीं लिया सकते, अमल दे च नहीं लिया सकते। व्यर्थ है ज्ञान। व्यर्थ ने वो कर्म जिन्हों का कुछ भी फल नहीं, लेकिन फिर भी कीते जाते हैं। कर करके थकना होता है, टुटना होता है, फल कुछ भी नहीं, और मनुख कर रहे हैं। तो खैर जगत गुरु शंकराचार्य तो उम्मीद नहीं की जा सकती सी कि उन्हों का ज्ञान बेअमल है, अमल वाला ज्ञान सी। हाथ जुड़ गए, कहने लगे मेरे तो भुल हुई है। सब कुछ माया है, शूदर भी माया है, उसकी छाया भी माया है, ये भी अनर्वचनीय है। सत्य जो है मिथ शायद है, शायद नहीं है। दावे नाल नहीं कह सकते है, क्यों उसका होना ना होना हो जाता है। पर दावे नाल भी नहीं कह सकते नहीं है, क्योंकि उसका ना होना होना हो जाता है। इसनों बड़े सोहने ढंग नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, भगत रविदास कबीर ने सुपने नाल तशबीह दी है। सुपना है नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है श्री रविदास ने। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। राजा रात नूं सुता है, नींद कली नहीं आउंदी, अपने नाल सुपनियां नूं लेके आउंदी है। भिखारी हो गया, सुपने विच भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, बड़ा दुखी हो रहा है। सुपने का मन देते तन देते उतना ही प्रभाव है जितना जागृत अवस्था का है। जागृत अवस्था विच मनुख क्रोध करे जो शरीर की हालत बनती है, सुपने विच भी क्रोध करे शरीर की वही हालत बनती है। सुपने विच दुराचार कीता शरीर की वही हालत बनती है जो जागृत अवस्था विच बनती है। तन ते मन की वही हालत बनती है। अगर कह दईए इस सुपने विच जो कुछ है नहीं है, जो कुछ है वो तो नहीं है, पर उसका जो प्रभाव है, दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, वो है। रात नूं सुपने चलते ने, कुछ दुख भरे कुछ सुख भरे। गुरबाणी ऐसा कहती है, रात नूं जो तू देखे है सुख भरे सुपने, दुख भरे सुपने, कदी दुखी होंदा रहे हैं, कदी सुखी होंदा रहे हैं। आलम विद्वान कहते हैं वध तो वध सुपने का पीरियड 20 मिनट का होंदा है। इस तो बाद दूसरा सुपना चल पैंदा, तीसरा चल पैंदा, चौथा चल पैंदा।
तो वो 20 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸੁਖ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 6-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ, ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ और जैसे अख खुली सुपना सुपना हो गया। हुण अखां भर आईयां ने, जो सुपने से विछड़ गए, जो सुपने दे संबंध बने सन जाग के टुट गए। ते जो जागृत अवस्था दे संबंध ने मित्रां दे, पुत्रां दे, पत्नी दे, पति दे, धन संपदा दे, महल माड़ियां दे, जो जागृत अवस्था दे संबंध ने, जैसे रात नूं सौंदे आ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਸੁੱਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਗ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸੌਂ ਕੇ ਸਭ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। खेड सारी समझती है। संसार की मिथ, निरंकार की सत्य, संसार की माया, निरंकार की परमात्मा, प्रकाश सतचित आनंद है ये मिथ। दिन नूं जो संबंध जुड़े, रात नूं सौ के टुट गए, और जो रात नूं सौ के संबंध जुड़े, दिन नूं जाग के टुट गए। दिन ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੌਂ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। तो गुरबाणी ये कह रही है, किधरे ऐसा तो नहीं जो रात ਨੂੰ संबंध जुड़े सन ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਨ, ਮਿੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋਗਾ।
ये भी मिथ होगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दावे नाल कहंदे ने, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। किधरे लड़ीवार कथा हो रही सी गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे, इस तरह का एक वाक आ गया सी, थोड़े दिन ही होए। तो घंटा फिर उसकी मैं व्याख्या करता रहा। बाहर आके दो तीन सज्जन कहन लगे, गैनी जी तुसी बड़ी डरावनी कथा की थी, असी ते आए सी कोई रब की गल सुनन वास्ते, साडा मन बड़ा भयभीत हो गया। तो मैं कि फिर तुसी नहीं समझी कथा, तुसी सुनी भी नहीं समझी भी नहीं। ते गुरबाणी का दावा है, जो सत नूं समझना चाहता है पहले मिथ नूं समझे, पहले मिथ का ज्ञान लवे। मिथ की है सुपना, सत की है सच है, सुपना नहीं। जो मिथ होंदा है उसे नूं असीं कहंदे नहीं ये सच नहीं सुपना है, और सुपने नूं असीं कह देंदे हैं सुपना है सच नहीं, ये सच है सुपना नहीं, ये सुपना है सच नहीं। तो सुपना की है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज त्याग ते वैराग दी मूर्ति। अब फरमान कर देने, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। जिथे तक दिखाई देंदा है और जो कुछ दिखाई देंदा है, अगर बड़े बड़े गुरु पीर पैगंबर उन्हां दा भी इतिहास है मिटेगा, वो भी सुपना ने। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कोशिश से अगर गुरु अवतार परमात्मा के विचकार दीवार बन गया है, तो वो गुरु भी माया है, वो अवतार भी माया है, वो मिथ है, कुछ भी नहीं। बड़ा शब्द है कीमती, माया चित भरमेण, मनुख दे मन नूं भरमा छड़ दिए माया है, ये मिथ। तो माया की है, इष्ट मित्र एक बांधवे। परिवार ते माया है, संसार ते माया है, इष्ट भी माया है, वो गुरु भी माया है जो दीवार बन गए, वो अवतार भी माया है जो परमात्मा दे विचकार दीवार बन गए। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, इको एक ऐसा भी अवतारी पुरुष होया है जिसने इस दीवार को खुद गिराया है। आप इस दीवार को गिरा दिता है ताकि कोई टकरा ना मारे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, जो हमको परमेश्वर उचरे हैं ते सब नरक कुंड में परे। कुंभी नरकां च जाणगे अगर मैनू परमात्मा मनणगे। मैं अज हाँ कल नहीं। और एक गुरु अर्जन देव जी दे बोल ने, माया चित भरमेण। मनुख सत नाल क्यों नहीं जुड़िया? माया भरमांदी है। माया की इष्ट जिहदी पूजा उत्थे रुक के रह गया। बचपन तो पूजा शुरू की थी सी, अखीर तक उत्थे रुकया, तो दीवार बन गई। करीबन करीबन दुनिया के पैगंबरी पुरुष गुरु अवतार दीवार बने ने। इस वास्ते बड़ा सोहना ना रखा गया गुरुद्वारा। गुरुद्वारा गुरुद्वार है, गुरु दीवार नहीं, गुरु घर भी नहीं है। कुछ दिनों तो गुरुद्वारे नूं गुरु घर कहने लग पे। नहीं, गुरुद्वार है, परमात्मा घर है। ये परमात्मा दे घर का दरवाजा है। लंघ जाओ। दरवाजा बैठन लई नहीं है, दरवाजा खड़े होने लई भी नहीं है, दरवाजे के उत्ते बिस्तरा डाइए इस वास्ते भी नहीं है। दरवाजा लंघन वास्ते। लंघ जाओ, लंघ जाओ गुरु तो, लंघ जाओ अवतार तो। और वो परमात्मा इतना बेअंत है कि ये अवतार भी उसका अंत नहीं पा सकता। इतने वड्डे निरंकार दे घर का एक निक्का जिहा द्वार है। अवतार गुरु पीर पैगंबर अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। इत्थों ही थोड़ी जिहा जिहड़ी गुरमत है ना अडरी हो जाती है कि अवतार नूं भी माया कह दिता है। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज स्वयं अपने हथी इस दीवार नूं गिरांदे ने। लोकी किधरे टकरा ना मार दे रहे इस दीवार नाल। गुरु नानक देव जी ते एक प्रश्न होया। सूफी संत शेख फरीद दा पोतरा वो पुछदा है, तुसी कौन हो? महाराज कहते ने, मानस मूरत नानक नाम।
मनुख दी मूर्तियां, ते इस मूर्ति नूं मां बाप ने नाम दिता है नानक। मानस मूरत नानक नाम, करणी कुत्ता दर फुरमान। मेरी करणी की है तो अर्थ करन लगे मनुख दी जबान कंबदी है। करणी कुत्ता दर फुरमान, मानस मूरत नानक नाम, करणी कुत्ता दर फुरमान। गुरु नानक देव जी के थां थां ते मंग भी यही करते, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते अवतार भी सुपना है, अगर वो दीवार बन गए। इष्ट भी सुपना है, पुत्र भी दीवार है, अगर निरंकार दे विचकार वो खड़ा हो गए। पत्नी भी दीवार है, किसी लिए पति भी दीवार हो सकती। ये झूठ दीवार बन गया। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। एक इस संबंध नूं भी गुरु नानक देव जी कहते मिथ है। रात नूं सौ गए, पत्नी का संबंध टुट गया, पुत्रां दे संबंध टुट गए, महल माड़ियां दे संबंध टुट गए, नवे बन गए, नवा मोह का पसारा शुरू हो गया। सवेरे जागे तो रात दे बने हुए संबंध टूट गए, और रात नूं जैसे सुते तो दिन दे बने हुए संबंध टूट गए। जो दिन नूं रुश्ते जुड़ते हैं वो रात नूं टुट जाते हैं, जो रात नूं बनते हैं वो दिन नूं टुटते हैं। तो गुरबाणी कहती किधरे ऐसा तो नहीं एक रात का सुपना होवे ते एक दिन का सुपना होवे, एक बंद अख का सुपना होवे, एक खुली अख का सुपना होवे, किधरे ऐसा तो नहीं है। इस संबंध मैं एक महान चीनी संत की आप बीती पढ़ रहे। असी 17-18 सफ़ियां की छोटी जी किताब है, उसकी हिंदी विच छप गई है, चीनी भाषा तो ट्रांसलेट की गई है, अनुवाद हिंदी विच। लाउत से छोटे छोटे सूत्र ने मैनू बहुत प्यारे लगे। ये अपनी आप बीती विच लिखता है। एक दिन किधरे सवेरे उठे, बड़ा गमगीन, बड़ा दुखी। तो शागिर्द कहते ने, चेले कहते ने, गुरुदेव इतना बेचैन ते कदी थानू नहीं देखे, थोड़े मस्तक ते इतनी परेशानी कदी नहीं देखी। ऐसा क्यों? क्योंकि परेशानी ते चिंता तो हमेशा तुसी बचन का उपदेश करते रहे। ये फकीर बोले है भी है मेरे बच्चे, वो गल है रात नूं जद मैं सुता ना ते मैनू सुपना आया मैं तितली बन गया ते मैं फुल्लां दे उत्ते उड़ रहा सी। ते सारे शागिर्द हस पे भी सुपने तुसी तितली बन गए तो गमगीन होने की लोड़ है, परेशान होने की लोड़ है, इतने दुखी क्यों हो रहे? सुपना सुपना है। लाउत से कहता है ऐ मेरे बच्चे हो तुसी गल पूरी नहीं सुनी, मैथों पूरी सुनो। रात नूं जैसे मैं सुता हाँ, मैनू सुपना आया तो मैं सुपने दे तितली बन गया। जैसे मैं जागया सवेरे, वो तितली नहीं है, लाउत से है। हुण मैं इस दुविधा विच पिया, लाउत से नू सुपना आया तितली बन गया कि तितली नू सुपना आया वो लाउत से बन गया। ये कौन फैसला करे? लाउत से नू सुपना आया वो तितली बन गया। की पता है तितली नू सुपना आया होवे वो लाउत से बन गया होवे। जे मेरा सुपना तितली हो सकती है तो किधरे ऐसा तो नहीं तितली का सुपना मैं हूं। ये कौन फैसला करे? रात नू जो मेरे संबंध बने सन मैं तितली सी, हुण जाग के मैं तितली नहीं हाँ, मैं मनुख हाँ। रात नू जेड़ा मेरा होना सी वो ना होना हो गया दिन नू, ते दिन नू जेड़ा मेरा होना है ये रात नू ना होना हो जाता है।
होना ना होने दे बदल जाता है, नहीं है, नहीं है। ये दो वाक जिस ते पूरे उतरन उसनू कहंदे ने सुपना। सुपने दे जो कुछ है वो तो नहीं है, पर उसका जो प्रभाव पै रहा है, मन दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा होते है। कहने जैसे इस मिथ की समझ पै जाए संसार है नहीं है, सुपना है। जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। तो जग दे जो कुछ भी है सुपने ज्यों धन पहचान, काहे पर कर तमान, बारू की भीत जैसे बसुदा को राज है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपनी बाणी च इसदे उत्ते बहुत जोर देंदे ने। अगर रात दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ कुछ लोग सही मन लेंदे ने, उन्हां दी जबान भी चल पैंदी है, बोलन लग पैंदे ने, कई दफा अखां भी खुल जांदियां ने। इतना सुपने ने प्रभावित किया है। तो कई जागृत अवस्था दे भी बड़े प्रभावित ने संसार तो, इतने प्रभावित ने निरंकार चेते नहीं आउंदा। मिथ ने इतना प्रभावित किया है, सत दा चिंतन नहीं। महापुरुष जैसे उसनों ये प्रतीत होंदी है सब कुछ मिथ है, बस उसे नाल सत प्रगट हो जाता है। तो सत क्या संसार का कुछ रूप होर बन जाता है। ये दरख्त दरख्त नहीं रहिंदे, ये मनुख मनुख नहीं रहिंदे, नहीं, ये सारे का सारा संसार निरंकार दी झलक प्रतीत होने लग पैंदा है। विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये जग सच्चे की है कोटड़ी, सच्चे का विश्वास। जैसे पता चलिया मिथ है, ज्ञान होया तो सत प्रगट हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, जागृत अवस्था दे कदी सुख कदी दुख भोगते हैं, सुपने च भी कदी सुख कदी दुख भोगते हैं। जागृत अवस्था दे कदी कदाई कोई माड़ियां मोटियां ख्वाहिशां साड़ियां पूरियां हो जांदियां ने, सुपने दे भी कुछ इच्छावां पूरियां हो जांदियां। पर सुपने की पूरी हुई इच्छा जाग के पता चलता है नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो मनुख किधरे दिन दे ही सारे संबंध ऐसे समझण लग पवे तो कहने इसनों ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया। गुरु ग्रंथ साहब सारी जो साधना साढ़े सामने रखते हैं ये ज्ञान की साधना है। समझ विचार कर, विचार देते धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुत जोर देंदे ने। पर कीता की जाए, सुपने का अपना प्रभाव तो है। मन दुखी हो जाता है, मन सुखी हो जाता है। हाफिज ईरानी सूफी संत नूं भी रात नूं एक दिन सुपना आया तो सुपने दे खुदा वो इसनूं लिखदा है, कहंदा हद हो गई, सत भी मेरे ते प्रगट होया मिथ दे द्वारा। इस फकीर दे अपने कहण दा ढंग हुण बहुत सारे बारीक अल्फाज ते मैनूं लभदे नहीं पे कि इसनूं मैं स्पष्ट बहुता करा। कहंदा सत भी प्रगट होया मिथ दे राही, परमात्मा दी भी झलक मिली माया दे राही, निरंकार दा भी मैनू बोध होया संसार दे राही। और जैसे बोध होया संसार मिट गया, लेकिन बोध मैनू संसार दे राही होया। इस वास्ते मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि संसार नहीं है, पर सिर्फ ये भी नहीं कह सकता है नहीं है। जैसे हर मनुख, तुसी पहले बच्चे सी, अज बचपना होना नहीं है। एक जवान को पूछिए वो बचपन किथे, कहंदा नहीं, पर किसी वक्त ते सी। किसी बुढ़े को पूछिए किथे गई जवानी, कहंदा नहीं है, पर किसी वक्त ते सी। जवानी है सी नहीं हो गई, बचपना है सी नहीं हो गया, तो बुढ़ेपा भी है नहीं हो जाएगा। इनू भी सुपना समझ, वो है सी नहीं हो गई, अनरवचनी। ये फकीर कहंदा रात नूं सुपने च खुदा आया ते मैनू कहन लगा फकीर कुछ मंग। बड़े खुश, और कहंदा मेरा सुपना इतना सच दे नेड़े, मैं खुदा नूं ही कह बैठा। जागृत अवस्था ते कदी तो नहीं आख्या मंग, सुपने च कह रहे हैं।
तो खुदा कहता जागृत अवस्था च भी मैं तेनों कहा है, कदी मां बन के आख्या बच्चे तेनों की चाहिए, कदी प्यो बन के आख्या तेनों ए पुत्र तेनों की चाहिए, कदी वड्डा भरा होके मैं तेनों गलवकड़ी नाल लाया है, कदी भैन बन के मैं तेरे हंजू पूंजे ने। ऐसा तो नहीं कि मैं जागृत अवस्था दे तेरिया लोड़ा नहीं पूरियां कीतियां, तू जो मंगदा रहा मैं देंदा रहा। मंग ये फकीर सुपने दे खुदा तो मंगदा है, मकुन बेदार अजी ख्वाबन खुदारा कि दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा जे देना ही है तो मेरी झोली च ये सौगात पा, हुण मैनू जगावी ना, ये सुपना चलता रहे ना जगावी, ये नींद चलती रहे, मैं नहीं जागना चाहता। इतना सुंदर सुपना तू है मेरे सुपने, अगर मेरी जागृत अवस्था दे तू ना हो तो उसमें जागरण नूं की करा, अगर मेरे सुपने अवस्था दे तू है तो मेरे लिए सुपना भी ठीक। ये फकीर कहता सत भी प्रगट होया मेरे ते मिथ दे राही। इस वास्ते मिथ नूं मैं किस तरह कह दिया नहीं है। कुछ वेदांती कहते रहने संसार नहीं है, नहीं है, और सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते है, बस इथों भुलेखा पै जाएगा, नहीं है। वो फकीर जाग के भी कहता है टूट गया मेरा सुपना, गई मेरी नींद, वो झलक भी चली गई, अखां भर आईयां ने। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते अखां मेरिया भर आईयां ने, सुपने आया ढे गया मैं जल भरिया रोए। जागृत अवस्था दे भी कुछ विछड़ता है, अखां भर आउंदियां ने, सुपन अवस्था दे भी कुछ विछड़ता है, अखां जो है भर आउंदियां ने। गुरबाणी का यह तत् सार है, जिस दिन सारा संसार मिथ प्रतीत होता है, सच उसते प्रगट हो जाता है। और फिर संसार नाल घृणा नहीं करता, क्योंकि उसकी छाया है, ठीक है, पकड़ च नहीं आउंदी, प्रभाव पा रही है। इसे नूं इस्लाम ने कहा हवा है, दिखाई देंदा है, प्रभावित करता है, पकड़ दे नहीं आउंदा। अगर ये मिथ प्रतीत हो जाए तो कहते हैं मनुख का लोभ गिर जाता है, मनुख का अहंकार गिर जाता है। नानक हुक्मे जे बुझे तां हौ मैं कहे ना कोई। फिर अहंकार गिर जाता है, फिर वासना गिर जाती है, फिर क्रोध किसते, फिर गहरी ममता की पकड़ भी जो है मिट जाती है। फिर ये सारा संसार, ये जो मिथ है, सच दा सत दा रूप होके जो है प्रगट होता है। थोड़े जिहा शब्द, थोड़े जिहा समय, थके हुए दिमाग नाल, थके हुए शरीर नाल, चूंकि 5-7 रातां तो ढंग की नींद नहीं। और अद की संगतां इत्थे 27 तरीक नूं आ गईयां। बारे महापुरुष संत जन, गुणी जन, रागी सिंह, प्रचारक महापुरुष, सब दा तैं दिलों शुक्रगुजार और उम्मीद है इसे तरीके नाल हमेशा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।